You are watching English with Ikram, and I am Ikram Haq, subject specialist. Dear viewers, do you want to speak English? Today I am going to discuss some very simple sentences that you can use while shopping in the market. These sentences will help you when you are in bazaar. Especially in these days, these are Eid days, you go to bazaar, and if you want to speak English, if you are supposed to speak English, these sentences will definitely help you to speak English, especially in bazaar, in the market. Okay, let's discuss. Number one, the sentence is ye chawal nakas hain. How would you say this in English? This is especially important for your spoken English as well as for your vocabulary. ये वो words हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे. The sentence is ये चावल नाकस हैं. This rice is of inferior quality. How would you say this in English? The rice is of inferior quality. ये अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है, quality ठीक नहीं है. Show me some other. So if you are at a place where you are supposed to speak English, especially in bazaar, you will use such sort of sentences while shopping or while doing something in bazaar. So this is the rice is of inferior quality. You have to keep two things in your mind: vocabulary, accuracy in two things: your grammar, vocabulary, and pronunciation. Pronunciation is also important. Sometimes your wrong pronunciation may create issue for you. You cannot communicate, you cannot convey your message with incorrect pronunciation. The second sentence is आजकल तजारत में कमी है. How will you say this in English? There is a slump in business nowadays. There is a slump in business nowadays. This is a specific word, specific phrase for this sort of sense. आजकल तजारत में कमी है, खसारा है, कम तजारत हो रही है. तो you would say there is a slump in business nowadays, right? So these are the sentences that will definitely help you while speaking English. So you have to be very much focused about your pronunciation, your grammar, and then your vocabulary. अगर आपकी vocabulary rich नहीं है, आपकी pronunciation accurate नहीं है, grammar accurate नहीं है, आप सही proper communicate नहीं कर सकते. Especially when you are any situation, आप बाज़ार में हैं, आप shopping कर रहे हैं, आप किसी शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में हैं, जॉब इंटरव्यू में हैं, किसी टेस्ट के इंटरव्यू में हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी इंटरव्यू में, आप ISSP, आप आर्मी के इंटरव्यूज़ में, तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन वो मैटर करती है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेल करवाती है, आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है. इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ गुड, इफ़ यू आर यूजिंग प्रॉपर वोकैबुलरी, इफ़ योर कम्युनिकेशन, योर प्रोनाउंसिएशन, योर ग्रामर, ये सारी चीज़ें मिला के आपको कम्युनिकेटिव बनाती हैं, आपको एक्सप्रेसिव बनाती हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं. तो इसलिए आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है. ये स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारे मैं ऐसे कॉमन सेंटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ. तो दिस इज़ वन मोर फॉर स्पोकन इंग्लिश. सेंटेंस नंबर 3, यू आर बाइंग समथिंग और आपके पास 50 रुपये कम है. तो हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? आई एम शॉर्ट बाय 50 रुपीज़. यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखें, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि हम इसको पढ़ते ₹50. लिखा ऐसे जाता है ना, RS then 50. तो दिस इज़ कॉमन एरर. लिखेंगे आप ऐसे, यू हैव टू राइट रुपीज़ फर्स्ट, देन दिस डिजिट, देन दिस फिगर. लेकिन जब बोलेंगे तो आप ₹50, दिस इज इनकरेक्ट. यू विल से 50 रुपीज़, 100 रुपीज़. लिखेंगे पहले रुपीज़, देन 100, देन डिजिट. लेकिन पढ़ते हुए आपने पहले डिजिट पढ़ना है, फिर रुपीज़ पढ़ना है. तो ये आप करेक्शन मस्ट करनी है. तो हियर आई एम शॉर्ट बाय 50 रुपीज़. एक आदत बन चुकी है हमारी भी कि हम पहले जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं. आई एम शॉर्ट बाय ₹100. I get 50 rupees, I get 5,000 rupees as a salary. So this is a common error, you have to correct it. You have to repeat this again in future. The next sentence is हड़ताल की वजह से काम बंद है. How would you say in English? Everything is closed. The business is closed because of strike. Everything is closed because of strike. स्ट्राइक की वजह से, हड़ताल की वजह से सब कुछ बंद है,
काम बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बाज़ार बंद नहीं, कोई काम धंधा नहीं है। नेक्स्ट, ये जूता तंग है, यू आर बाइंग ए शू, पेयर ऑफ शू, जूते खरीद रहे हैं, दुकान पे हैं। हाउ वुड यू से, ये तंग है मुझे दूसरा दिखाओ। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, दिस शू इज़ टाइट, शो मी अनदर। दिस शू इज़ टाइट, तंग है, मुझे फिट नहीं है, तंग है, बड़ा नंबर दिखाओ, शो मी अनदर बिगर वन। तो हियर दिस शू इज़ टाइट, शो मी अनदर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो उधार पर सौदा नहीं देता। ये एक शॉपकीपर है जो उधार नहीं देता। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, ही डजंट सेल द थिंग्स ऑन क्रेडिट, ही डज नॉट सेल द थिंग ऑन क्रेडिट। ये उधार पे सौदा नहीं, उधार नहीं देता। ये शॉपकीपर, ये बंदा उधार नहीं देता। दिस शॉपकीपर डज नॉट सेल द थिंग्स ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट पर माल नहीं देता, ये उधार चीज़ें नहीं देता। तो आपको जब इस तरह कोई बात करनी पड़ती है कि कोई बंदा उधार नहीं देता, तो आप उसको ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे बाल बहुत छोटे नहीं काटना। यू आर एट ए हेयर ड्रेसर शॉप, यू आर गेटिंग योर हेयर कट, बाल कटवा रहे हैं। तो आपसे कहते हैं, यू आर इन इंग्लैंड इन अ सिचुएशन वेयर यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश और टॉक इन इंग्लिश। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, डोंट कट द हेयर टू शॉर्ट, डोंट कट माई हेयर टू शॉर्ट। मेरे बाल बहुत छोटे नहीं काटना, डोंट कट माई हेयर टू शॉर्ट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यू आर एट बाइंग पैंट और एनी ट्राउजर्स और जर्सी और स्वेटर। तो आप कहते हैं कि मुझ पे ढीली है, खुली है। तो आप कैसे कहेंगे, दिस ट्राउजर इज लूज, LOOSE, दिस इज एडजेक्टिव। नॉर्मली इसको भी हम LOSE लिखते हैं, या LOSE को हम LOOSE लिखते हैं। LOSE दैट इज वर्ब, लूज, ज़ा साउंड, लूज, लॉस, लॉस, वो वर्ब है। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ढीला, खुला। तो दिस ट्राउजर्स इज लूज, सा साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड, इट्स सा साउंड। दिस ट्राउजर इज लूज, दिस स्वेटर इज लूज टू मी, दिस शर्ट इज लूज टू मी, दिस शर्ट इज टाइट टू मी। द अपोजिट ऑफ टाइट इज इट लूज, सा साउंड, नॉट लूज। आमतौर पर हम इसको लूज पढ़ते हैं। लूज वो वर्ब है, इसका मतलब है ज़ाया होना, खो देना। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हें जूता पाँव में लगता है? जब आप टाइट जूता पहनते हैं तो पाँव में थोड़ा सा लगता है, पाँव को तंग करता है। तो इसको आप कहते हैं, जब आप किसी से कहते हैं, बच्चे से कहते हैं, छोटे से कहते हैं, हाउ विल डज द शू पिच यू, डज दिस शू पिच यू, कि आप जूता, हमारा आपने जबान, जूता आपके पाँव को लगता है, मारता है, काटता है, तंग होता है बंदा, स्पेशली बच्चे को जूता पहना दे, तंग होता है। तो डज दिस शू पिच यू, क्या जूता आपके पाँव को लगता है, तंग है, बहुत टाइट है। लास्ट सेंटेंस इज, दिस इज नंबर 10, हर तरह का कपड़ा यहाँ दस्तियाब है। इस दुकान पे हर तरह का कपड़ा कोई भी चीज़, हर तरह का माल दस्तियाब है। हाउ वुड यू से, ऑल वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ आर अवेलेबल हियर, ऑल वेराइटीज़ ऑफ वट एवर द थिंग, ऑल वेराइटीज़ ऑफ दिस थिंग इज़ अवेलेबल हियर। यहाँ हर तरह का माल, हर तरह की वेराइटी अवेलेबल है। दीज आर 10 very simple sentences, especially important to use in bazaar, in market, while shopping, relating with business. तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, and you have to speak with the help of these sentences, because this is all about practice. If you keep on practicing, if you keep on using such sentences in your language, this becomes the part of your communication. अदरवाइज जस्ट एक दफ़ा सुनने से ये चीज़ें आपकी जहन से निकल जाती हैं। जब आप रिपीट करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, देन दिस बिकम द पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, द पार्ट ऑफ योर डेली लैंग्वेज, देन यू कैन स्पीक विद द हेल्प ऑफ सच सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस। कीप ऑन वाचिंग माई अदर वीडियोज रिलेटेड विद स्पोकन इंग्लिश। आई हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू improve your fluency, how to improve your pronunciation, how to improve your accuracy. Then there are different senses and application of different type of sentences, different tenses. If you want to speak English, there are many videos in the playlist of Spoken English. Watch those videos, give your response, comment, ask question. That's all for today. Thank you very much.